हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कैच करो। हम लोग अभी देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के पेपर जो कि है बिहार सिविल कोड क्लर्क का एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर 2024 को। इसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हमने अभी थोड़ी देर पहले आंसर की चेक किया था। अब इसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं। मैं एक बार और दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आंसर्स ऑफिशियल आंसर की हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द पेपर। सो द रोल नंबर हेयर इज कैच करो, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है। So the very first question starts from the passage. The passage is: the rule of the road means that to protect everyone's freedom, we must sometimes restrict individual freedom. When a policeman steps into the road and raises his hand to stop the traffic, he is not acting as a tyrant, but as a protector of the freedom. By accepting small limits of on the personal liberty, we can create a society where freedom is real for everyone. We must preserve both our individual freedom and our social freedom. This requires a thoughtful balance. While no one should tell me exactly what my child must study, if I were to say my child should have no education, society would step in and insist that my child must go to the school, whether I like it or not. The question is, what does the rule of the road suggest in the passage? Freedom should not be restricted at any time. Individual freedom must sometimes be limited to protect everyone's freedom. Only policemen have the right to restrict freedom on the road. Freedom cannot coexist with the rule. So the correct answer here is individual freedom must sometimes be limited to protect everyone's freedom. According to the passage, when a policeman stops traffic, he represents, what does he represents? He represents the freedom. कहाँ पर है ये mention हमारे पास? He is not acting as a tyrant, but as a protector of freedom. He represents as a freedom. The author suggests that society would intervene in a parent wants his child to attend a specific school. Option B is a parent insists that his child should not receive any education. A child prefers studying science over arts. A child wants to study abroad. The correct answer here is answer B, correct. A parent insists that a child should not receive any education. Next question is, what is required to maintain both individual and social freedom? According to the passage, a strong government, complete individual freedom without limits, a balance between individual and social freedom, restrictions on only social freedom. The correct answer here is exactly restrictions on only social freedom. Okay, so let's move to the next question. Next question is question number 5 to 9. In the following questions, out of the four alternatives, select the word nearest to the meaning to the words given. मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड जो है हमें फाइंड करना है. फर्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंटेशन. ऑस्टेंटेशन क्या है? कामनेस या इक्वानिमिटी, डिक्लेरेशन और पेजेंट्री. द करेक्ट आंसर हेयर इज पेजेंट्री. प्रीमोर्डियल. प्रीमोर्डियल क्या है? फीलिंग्स ऑफ एलिशन, स्मॉल, एलिमेंट्री, डाउंटिंग. द करेक्ट आंसर हेयर इज करेक्ट है सी, elementary. Massive. Massive stands for enormous. Stubborn. Stubborn मतलब क्या होता है? जिद्दी. हिंदी में इसके क्या बोलते हैं? जिद्दी. क्या है इसका मतलब? क्या है stubborn का? Observant, obnoxious, obstinate, corpulent. Correct answer here is obstinate. Astronomical. Astronomical का क्या है? Exorbitant, commercial, durable, illogical. क्या है इसका आंसर? Exorbitant. नेक्स्ट इज मोस्ट नियरली अपोजिट. अपोजिट मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? एंटोनिम. एनाथेमा. एनाथेमा का क्या है? एप्रिसिएशन, कर्स्ड, प्रोटेक्शन, ऑब्स्टेकल. एग्जैक्टली एप्रिसिएशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपेक. ओपेक का क्या हो जाएगा अपोजिट? ट्रांसपेरेंट. बी लिटिल. बी लिटिल का क्या हो जाएगा? मैग्नीफाई. इंक्लीमेंट. इंक्लीमेंट का प्लीजेंट, स्टॉर्मी, फीबल, डिग्निफाइड. क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लीजेंट. वैनिटी. वैनिटी के लिए क्या? ह्यूमिलिटी या प्राइड या ऑब्स्टेंटेशन या फिर पिटी. क्या हो जाएगा वैनिटी के लिए? ह्यूमिलिटी.
वैनिटी और ह्यूमिलिटी क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 15 to 17, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स और प्रोवर्ब्स। मतलब जो ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं ना, इसका सेम मीनिंग क्या होगा वो हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 to 17, 3 क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे। टू मूव हेवन एंड अर्थ, to pray earnestly, to make every possible effort, to sing beautifully, none of the above. The correct answer here is to make every possible effort. Next is to jump the gun. To jump the gun, to do something without finishing it, to try and harm someone, to do something before the appropriate time, none of the above. The correct answer here is to do something before the appropriate time. Question number 17, to fly off the handle. To fly off the handle, to dislocate, to lose one's temper, to take off, to be indifferent. The correct answer here is to lose one's temper. Question number 18 to 20, out of the which alternatives, which of the one which can best substituted for the given words or sentence? Constant effort to achieve something. इसके लिए मतलब ये जो लाइन है ना, इस फ्रेज के लिए सिंगल वर्ड देना है हमें। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग क्या होगा, पेशेंस, विगर, एंथुसियाज्म, परसिवरेंस। क्या होगा इसका आंसर, परसिवरेंस। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, जो वर्ड्स टॉम्ब, टॉम्ब मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े पुराने मूर्तियां होती थी ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं, टॉम्ब। यूलोजी, एपिटेप, मेमोयर, एलोक्वेंस। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट है, एपिटेम। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी। Soaps clean surfaces on the principle based on viscosity, flotation, elasticity, surface tension. क्या होगा इसका आंसर, surface tension. Which one of the following waves is used for detecting forgery in currency notes? कौन से वेव से जो है, जो करेंसी के नोट्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास नोट्स होते हैं पैसे रुपए के, उसको डिटेक्ट करने के लिए, या वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, उसको चेक करने के लिए कौन सी वेव की नीड होती है, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस को यूवी रेस भी बोलते हैं, यूवी वेव्स बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, आईआर वेव्स, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का क्या है सिंबल, ऐसा लिखते हैं माइक्रोवेव्स के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या है बताओ, CaSO4.2HO2, Ca2SiO4, 2CaSO4.H2O या CaSO4। द करेक्ट आंसर हेयर इज CaSO4.2H2O। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन एक्चुअली में करता क्या है, थायराइड ग्लैंड में हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, कंट्रोल ओव्यूलेशन, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। ये क्या करता है हमारे पास, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। प्रीकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है, इससे कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। द करेक्ट आंसर हियर इज विटामिन ए। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो हुआ था इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, उसका जो है फाउंडर कौन थे। ऑप्शंस आर हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हारे, द्वारकानंद टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर। देखो इसका राइट आंसर क्या है, हेनरी विवियन डेरोजियो। इसको हम दूसरे तरीके से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जो द्वारकानंद टैगोर था ना, जिस समय यंग बंगाल मूवमेंट हुआ था ना, उस समय इनका कहीं नाम ही नहीं था, इन दोनों का तो कहीं नाम नहीं था। डेविड हेरे जो था ना, वो यंग बंगाल मूवमेंट में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत बाद में आया था। तो ऑब्वियस से क्या आंसर बचता है हमारे पास, हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज was organized to fight against Germany and Japan, British in India, जापान और रशिया। द करेक्ट आंसर हेयर इज ब्रिटिश इन इंडिया। किन्होंने इसको बनाया था, बोस साहब ने बनाया था। कहां पर था,
इंग्लैंड के अंदर ये आर्मी बनाया बनाया गया था। हु इज द करेंट चेयरपर्सन फॉर द नेशनल वुमेन कमीशन? नेशनल वुमेन कमीशन जो है, महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उनकी अभी करंट चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन कर रही हैं? ममता शर्मा, रेखा शर्मा, विजय किशोर रहतकर, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज विजय किशोर रहतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? द ऑप्शंस हियर आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। द करेक्ट आंसर इज कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन से स्टेट में जो है सबसे लंबा तट रेखा है, मतलब समुद्र के नजदीक या नदी के नजदीक सबसे लंबा कौन है जिसके बाउंड्री जो है समुद्र या फिर नदी से, कोस्ट से मिल रही है? द ऑप्शंस हियर आर उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। द करेक्ट आंसर हियर इज गुजरात। The two provisions of the Constitution of India that most clearly expresses the power of judicial review. कॉन्स्टिट्यूशन की दो प्रोविजंस बताने हैं जिसमें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है क्लियरली मेंशन्ड है। कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हियर आर आर्टिकल 21, आर्टिकल 446। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? राइट टू लाइफ से, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में, ठीक है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ये भी नहीं है, ये हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ा था आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 152 ये है करेक्ट आंसर। राइट टू रिव्यू जो है हमारे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो किन में है? आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 में हाई कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का, एंड आर्टिकल 44 में सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following can attend the meetings of both of the houses of parliament while not being a member of either of the house? मतलब क्या है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी निम्नलिखित में से कौन से संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर हियर इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो ऑफिशियल मेंबर होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हट गया क्योंकि क्या है, नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। जो कैग है ये हम जानते हैं कि ये अटेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का कर सकता है, राज्यसभा का नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है दोनों का कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बेसिक फीचर कौन सा नहीं है? अभी बेसिक फीचर की जो बात थी ना, वो साइलेंट फीचर्स इसमें किसमें हुआ था? केशवानंद भारती केस से आएगा ये, ठीक है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट आंसर हियर इज द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अटेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो केशवानंद भारती केस का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लोएस्ट पूछ रहा है। देखो, अगर हाईएस्ट होता तो क्या होता? हाईएस्ट में यूपी आएगा। ये क्वेश्चन, हाईएस्ट वाला क्वेश्चन जो था वो यूपी पीसीएस का इस साल का क्वेश्चन था, हमने देखा था अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर यहाँ पे लोएस्ट पूछ रहा है तो लोएस्ट क्या है हमारे पास? इसमें लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश। अभी आप लोगों को कमेंट में ये लिखना है अरुणाचल प्रदेश का जो है ये सारे स्टेट का, इनके पास कितने कितने सीट्स हैं लोकसभा के, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने कितने सीट्स हैं लोकसभा में, ये आपको कमेंट में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द टॉप कंट्रीब्यूटर टू द इंडियाज टोटल एफडीआई फॉर द 2023-24? जो एफडीआई है ना, वो 2023-24 में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस कंट्री ने किया था इंडिया में? ऑप्शंस आर मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएसए, जापान। द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rupees 561 is distributed among A, B, C in such a way that A gets 120 rupees more than B. मतलब अगर B को X मिला है तो A को कितना मिलेगा? X plus 120 and rupees 120 less than C.
और ए को क्या मिलता है 120 रुपए लेस देन सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? तो बी का शेयर क्या है? देन ऑप्शंस आर ₹73, ₹67, ₹76, ₹80। द करेक्ट आंसर विल बी ₹67। 561 रुपीज। ओके, ये यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इफ A ratio B is equal to 3:4, B ratio C is equal to 4:7, then A plus B plus C by C is equal to 1, 4, 3, 7. What will be the answer of this question? The answer will be 2. आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे निकालना है। A by B इक्वल टू क्वेश्चन में दे दिया आपको 3/4, तो A इक्वल टू क्या हो गया 3B/4। ठीक है, उसी तरीके से B by C इक्वल टू 4:7, तो B इक्वल टू क्या 4:7 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से क्या 4/7। तो B इक्वल टू क्या हो गया 4/7 C। तो अभी देखो A की जगह ये जो क्वेश्चन पूछा ना, A की जगह आप ये वैल्यू पुट करो, अगेन B की जगह आप ये वैल्यू पुट करो, और यहां पर भी B की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 84। दो नंबर का रेशियो क्या है A रेशियो B इक्वल टू 3:4 और A बाई B इक्वल टू 3/4। देयर एलसीएम इज 84, मतलब A कोमा B का जो एलसीएम है ना वो कितना आ गया 84। व्हाट विल बी द लार्जर नंबर आउट ऑफ दिस? लार्जर नंबर क्या होगा 21, 24, 28, 84। द करेक्ट आंसर हियर इज 28। Next question is A can finish a piece of work in 12 days and A and B can together finish it in 8 days. In how many days can B alone finish the work? देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक हमारे पास यूपीपीसीएस में भी हमने देखा था, जो एग्जाम अभी लास्ट संडे को ही हुआ था। इसमें क्वेश्चन क्या था कि ए और बी मिलके कुछ काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो ए कितने दिन में करेगा, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। इससे हमें पता चलता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरी है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर सीधे आंसर पे आएंगे। इसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं लूंगा एक आपके साथ बाद में शाम तक, जिसमें हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो अभी के लिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा 24, 20, 18, 22। द करेक्ट आंसर विल बी करेक्ट है 24। A can do a piece of work in 10 days, B in 15 days, C in 20 days. A and C together worked for 2 days. After that, B was put on the job in place of A. In how many days the work was completed in all? देखो A किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, B 15 दिन में तथा C 20 दिन में पूरा कर सकता है। A और C मिला के 2 दिन कार्य करते हैं। तत्पश्चात A के स्थान पर B का कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 12 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 8 दिन। इसका सही जवाब क्या है हमारे पास 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए और कार बी की गति अनुपात, मतलब अनुपात क्या है, मतलब ए और बी का रेशियो हमसे पूछा है कार की स्पीड की। ठीक है, ए की स्पीड और बी की स्पीड की हमसे रेशियो पूछा है। ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है 28:31, 29:32, 55:2, 62:55। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 28:31। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लेंट ₹5,000 टू बी फॉर 2 years। ए ने कितना लिया 5,000 का अमाउंट लिया बी से 2 साल के लिए। टी कितना हो गया यहाँ पे 2 year। ए अमाउंट कितना हो गया 5,000 रुपए एंड ₹3,000 टू सी फॉर 4 years। तो यहाँ पे अगेन एक A2 दे दिया, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं। A2 कितना हो गया 3,000 और T2 कितना हो गया 4 साल एट द सेम रेट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे लिया इन्होंने, ठीक है। ही रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 2200 एज इंटरेस्ट फ्रॉम देम। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 2200 इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो हमने एसआई का फॉर्मूला क्या रखा था PRT/100। इस पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे,
ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पीआरटी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम अपॉन 100, दोनों के लिए निकालो आप अलग अलग। उसके बाद उसका क्या आएगा, 5%, 7%, 8%, 10%, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है 5%। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 8,028 रुपए इन 3 years and rupees 12,042 in 6 years at a certain rate of interest. When the interest is compounded annually मतलब क्या लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग हमें कमेंट में बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सही बोल रहे हो, कुछ एडिशन, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में टाइप करके बताएं। ऑप्शंस हियर आर 5352, 4569, 5643, 4596. The correct answer here is rupees 5352. A man travels a certain distance by motorcycle. He had traveled 6 km per hour slower. He would have taken 8 minutes more, but he had traveled 4 km per hour faster. He would have taken 4.5 minutes less. Find the distance. इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो पहले क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर स्पीड क्या थी इसकी, स्पीड इज इक्वल टू क्या थी, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्लोअर थी, तो जो है 8 मिनट इसको ज़्यादा लगते हैं, 8 मिनट इसको ज़्यादा लगते हैं। अगर ये जो है 4 किलोमीटर पर आवर जो है फिर स्पीड फास्टर करता है, तो 4.5 आवर जो है इसको लेस, 4.5 मिनट जो है इसको लेसर टाइम कंज्यूम होता। तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं हमें, डिस्टेंस स्पीड कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, 66 किलोमीटर, 68 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। द करेक्ट आंसर हियर इज 72 किलोमीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.57 बार माइनस 1.68 बार इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन आर 0.23 बार, 0.41 बार, 0.06 बार, 0.8 बार। द करेक्ट आंसर इज 0.8 बार। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जंक ईमेल क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, स्पैम, स्पूफ, स्नीफर स्क्रिप्ट और स्पूल। द करेक्ट आंसर इज स्पैम। इसलिए हम लोग जब जीमेल खोलते हैं, अपना मेल खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं स्पैम सेक्शन एक बना रहता है, वो क्या है, जंक ईमेल होता है। डाटा ट्रांसफर रेट इन नेटवर्क और मोडम्स इज मेजर्ड इन बिट्स पर मिनट, बिट्स पर सेकेंड, बैंडविड्थ, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज बिट्स पर मिनट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, MBPS, ठीक है। मेगा बिट्स क्या फुल फॉर्म होता है, मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ frames, signals, packets, slots. The correct answer here is the video consists of frame. देखो अगर यहाँ पे वीडियो की जगह जो है ना, अगर लाइट होता तो लाइट क्या होता है ना, पैकेट में आता है, सीक्वेंस ऑफ पैकेट। अगर ये वीडियो की जगह लाइट हो जाता तो क्या होता, पैकेट, क्योंकि लाइट जो आप सन से आ रहा है ना, वो एक सिंगल लाइट नहीं आता, वो पैकेट ऑफ लाइट होते हैं। और वीडियो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। विच आर द फॉलोइंग इज आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, MS वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कैरी आउट टास्क सच एज राइटिंग अ लेटर इज कॉल्ड GUI सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो OS होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कोई एक स्पेसिफिक यूटिलिटी के लिए होगा, ठीक है, एक डे टू डे यूटिलिटी का मतलब ही होता है डे टू डे काम आने वाली चीजें। GUI ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बेसिक, कोबोल, लोटस और फोर्ट्रेन। कौन सा नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज, लोटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, याहू, ओपेरा, क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स। आंसर इज याहू। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है, कोई वेब ब्राउजर नहीं है। डैश डोमेन इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस,
कौन सा डोमेन जो है एजुकेशनल पर्पज से यूज होता है? .in, .org, .com, .edu। आंसर क्या है? .edu। ठीक है, इसलिए आप देखोगे ना जो कॉलेजेस वगैरह के जो वेबसाइट होते हैं ना, वो कॉलेज के वेबसाइट, जैसे मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ ना, उस कॉलेज का वेबसाइट क्या है? www.iitr.ac.in, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ना कॉलेज है IIT रुड़की। ठीक है, तो इसमें ac.in है। अगर आप जैसे कोई दूसरे यूनिवर्सिटीज देखते हो ना, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी है तो university.edu। बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? MIT, MIT.edu, MIT.edu। edu stands for educational website। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following components of a computer system manages and coordinates the operations of all the other components? कौन से जो है कंप्यूटर सिस्टम का, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है जो कि सारे ऑपरेशंस को जो है कोऑर्डिनेट करता है और काम करता है उनके साथ में? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट। बताओ कौन सा होगा इसका आंसर? कंट्रोल यूनिट। देखो इनपुट यूनिट का काम क्या है? इनपुट देने का। एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। आउटपुट यूनिट का क्या काम है? आउटपुट देने का। एग्जांपल प्रिंटर। प्रिंटर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। या फिर मॉनिटर। अर्थमेटिक यूनिट जो कि अर्थमेटिक प्रोसेस करता है, ये कहां पर होता है? सीपीयू के अंदर होता है। सारे अर्थमेटिक प्रोसेसेस अर्थमेटिक यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। ये भी सीपीयू के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। JPEG stands for Joint Professional Expert Group, Joint Program Evaluation Group, Joint Photographic Expert Group, Joint Photographic Experienced Group। The correct answer here is Joint Photographic Experts Unit, Experts Group। JPEG फोटो होता है ना, हम लोग फोटो को सेव करते हैं ना .jpeg में, इसी का फुल फॉर्म पूछा था हमसे। URI stands for Uniform Research Limited, Uniform Resource Locator, Uniline Resource Lab, Uniform Research Locator। The correct answer here is Uniform Resource Locator। Next question is spreadsheet files are generally stored with an extension। spreadsheet क्या होता है? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ फाइल बनाते हैं हम लोग स्प्रेडशीट में। और कैसा डॉक्यूमेंट होता है? एक्सेल का फाइल होता है। याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो एक्सेल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? क्या एक्सटेंशन यूज करते हैं एक्सेल के लिए? .xlsx। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। जो स्प्रेडशीट होते हैं ना, इसमें जो इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ये जो है नाम से पूछ रहा है, ये क्या है? बॉक्स, सेल, लाइन और नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर हियर इज सेल। डैश इज अ कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो। JPG, MP4, MPEG, 3GP। क्या है? वीडियो का ट्रांसमिशन से रिलेटेड कंप्रेशन टेक्नोलॉजी कौन सा है? आंसर MPEG। देखो MP4 जो होता है ना, वो वीडियो होता है, नॉट कि वो ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि वीडियो ट्रांसमिशन को कंप्रेस करे। ठीक है ना? JPG किसके लिए होता है? फोटो के लिए होता है। जो फोटो होता है ना, वो JPEG या JPG हम फॉर्मेट में सेव करके रखते हैं। 3GP क्या है? लो क्वालिटी ऑफ वीडियो। MPEG क्या है? जिससे हम लोग MPEG कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वीडियो। Let's move to the next question. Dash is a chip which perform arithmetic and logical instruction in CPU। कौन सा चिप होता है जो arithmetic and logical instructions को perform करता है CPU के अंदर? मेन मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, HDRAM। कौन सा होता है? करेक्ट आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? सारे के सारे प्रोसेस करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, अभी जो पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, जिसमें ये पूछा गया था हमसे कि कंट्रोल यूनिट का, अगर इसमें पूछता ना हमसे कि कौन सा स्पेसिफिकली कौन सा सेगमेंट होता है या कौन सा यूनिट करता है, तो वो कौन सा करता है? माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द जो सही से लिखा गया है। व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक। क्या है सही तरीके से क्या लिखा गया है? कौन सा है सही तरीके से लिखा हुआ? करेक्ट है। व्यवहारिक को कैसे लिखते हैं? व्यवहारिक। नेक्स्ट इज प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव को कैसे लिखते हैं हम लोग? प्रादुर्भाव को लिखते हैं प्रादुर्भाव।
प्रादुर्भाव। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज अप्रत्याशित। अप्रत्याशित को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? अप्रत्याशित। ऑप्शन इज सी। अनुसंधान। अनुसंधान को हम कैसे लिखते हैं? अनुसंधान को हम लोग लिखते हैं अनुसंधान। ऑप्शन इज डी। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति को कैसे लिखते हैं हम लोग? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66 से 70 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द उनके लिए विकल्पों में से चुने। मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन का एक सिंगल वर्ड बताना है। जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन इज अजन्मा, अजर, अनादि और द्विज। अजन्मा। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो वस्तु जो नाशवान हो, उसको क्या कहते हैं? नश्वर, शाश्वत, अमर और अलौकिक। क्या कहते हैं उसको? नश्वर। जो किसी का हित चाहता हो, उसे क्या कहते हैं? हितकारी, अहितकारी, हितैषी, हितभाषी। क्या कहते हैं? हितैषी। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। क्या कहते हैं जिसको थोड़ा सा कुछ नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए के विकल्पों में से चुने। मतलब जो ये मुहावरा है ना, इसका क्या मीनिंग है? हाथ को हाथ ना सूझना। मतलब क्या है? अपने हाथ को खुद का ही हाथ नहीं पता चल रहा है कि हमारा हाथ कहाँ पर है। इसका मतलब क्या है? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना। द करेक्ट आंसर इज घना अंधेरा होना। जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हमें खुद का हाथ नहीं दिख रहा है तो तुम्हें कहाँ से ढूंढूंगा। आंखें चुराना। आंखें चुराना का अर्थ क्या है? कतराना, धोखा देना, ठगना, चाल चलना। आंखें कब चुराने की जरूरत पड़ती है हमें? जब हम किसी से छिपने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसे कतराते हैं उसके सामने आने में। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो लेखक के विचारानुसार हो दिए गए विकल्पों में से चुनिए। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने की प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दें, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा ना दें। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है अपनी समृद्धि, अपनी भाषा, अपनी उत्सर्ग भावना या फिर अपनी न्याय चेतना। अपनी समृद्धि इज द करेक्ट आंसर। गद्यांश का सही शीर्षक, ये जो गद्यांश हमने पढ़ा था ना, उसका सही शीर्षक क्या होगा? राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्राभिमान, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य या फिर राष्ट्र का सुख शांति। क्या होना चाहिए? राष्ट्राभिमान, मतलब राष्ट्र का अभिमान। अच्छा, राष्ट्राभिमान का आप लोग संधि विच्छेद लिख सकते हो। इसका संधि विच्छेद लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। किस चीज का अभिमान होता है? देश के समृद्धि के लिए, देश के सुख शांति के लिए, देश के भाषा के लिए या फिर देश की महत्ता के लिए। किसके लिए? देश के भाषा के लिए। आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा क्या है वो लिखें। देशभक्ति प्रेरित करती है अनुचित का निवारण करने के लिए, अन्याय हेतु लड़ने के लिए, अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, पराधीनता के लिए युद्ध करने हेतु। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? अनुचित का निवारण करने के लिए। निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से कीजिए। मृगेंद्र, मृगेंद्र का
समानार्थी शब्द क्या है, समान अर्थ का शब्द क्या है, शार्दुल, अहि, हिरण या फिर कुरंग? क्या है, शार्दुल। धरती, चंचला, लोचन, सरसी या अचला? धरती का क्या है, अचला। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करना है, विलोम शब्द लिखना है हमें। ऋणात्मक, ऋणात्मक का क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक या फिर अनात्मक? क्या होगा इसका अपोजिट, उल्टा शब्द क्या होगा ऋणात्मक का? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, धनात्मक। ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब होता है हमारे पे कितना कर्ज है। बहुत सारे कर्ज को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो बहुत सारे धन हो गए हमारे पास। अति, बहुत अधिक, असीम, अल्प, अतिशय। अति का मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोग ये समझो, अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मतलब जब ज्यादा हो जाता है हम बोलते हैं ना अति हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो ये होगा नहीं, असीम नहीं है, अतिशय नहीं, क्या होगा, अल्प। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर लॉजिकल क्वेश्चंस और वी कैन से रीजनिंग क्वेश्चंस। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन 2 रोज, 2 रोज में बैठ रहे हैं, 1 2, ठीक है, 2 रोज में बैठ रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ई जो है किसी भी एंड में नहीं है, ई का पोजीशन यहाँ पे नहीं है, किसी भी एंड पॉइंट पे नहीं है। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अगर एफ यहां पर है तो डी 1 2, डी यहां पे होगा। अगर एफ यहां पर है तो डी यहां पे होगा। अब देखो डी जो है पहले पॉइंट पे ही होगा क्योंकि 3 3 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। तो या तो पहले रो में डी बैठेगा या सेकंड रो में डी बैठेगा। अगर डी पहले रो में है तो एफ उसी रो में लास्ट में होगा, डी अगर सेकंड रो में है तो एफ यहां पे होगा। इसका मतलब क्या है, ई किसी ना किसी बीच पॉइंट पे होगा। सी इज द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी, ठीक है। बी इज द नेबर ऑफ एफ, बी क्या है, एफ का नेबर है, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर किस कौन बैठ रहा है, एफ एंड सी या फिर डी एंड ए एंड सी, ए एंड एफ। क्वेश्चन से हमें पता चलता है ना, ए एंड एफ अपोजिट बैठ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो, सेम रो में कौन कौन है, ए एंड डी, ई एंड डी, सी एंड बी, ए एंड बी, कौन है सेम रो में, ए एंड ई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग इन वन ऑफ द टू रोज, वन ऑफ द टू रोज में कौन से 3 लोग जो है बैठ रहे हैं, एफ बी सी, सी बी, डी बी एफ या ए ई एफ? द करेक्ट आंसर हियर इज डी बी एफ। After D and E interchanging seats, who will be the neighbors of D in the new position? नेबर ऑफ डी कौन सा होगा अगर डी और ई जो है वो आपस में इंटरचेंज कर ले, सीट जो है चेंज कर ले, तो कौन होगा, सी एंड ए, एफ एंड बी, ओनली बी या फिर ओनली ए? द करेक्ट आंसर हियर इज सी एंड ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी और सी का क्या रिलेशन है, बिल्कुल सही जवाब है, बी और सी का क्या रिलेशन है, अंकल का। ए बी सी आर सिस्टर्स, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई इज द डॉटर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डू? ए और डी का रिलेशन कैसा है, ए बी सी क्या है, सिस्टर्स हैं, डी क्या है, ब्रदर ऑफ, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ए डी का रिलेशन क्या है, देखो इससे समझ में आ गया ना, ए बी सी, इसकी डॉटर जो है, डॉटर जो है वो होता है हमारा ई, ठीक है। और ई का जो है वो क्या है, डी। तो ताई ताया का हो गया ना, ताई और बच्चे का मतलब क्या हो गया, 86 का क्वेश्चन क्या हो गया, अंट का। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल इन विच बी इज हस्बैंड, बी क्या है, हस्बैंड है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ठीक है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स जो है ना ए का भाई है, ठीक हो गया। हाउ इज वाई इज रिलेटेड टू बी? तो वाई और बी का देखो, पापा मम्मी थे, पापा के भाई थे, आपके बड़े पापा, देखो पापा मम्मी थे, आप ऐसे समझो ए और बी पापा मम्मी हैं। पापा कौन से हैं, बी हैं, बी क्या है आपके फादर हैं,
ठीक है। ए का भाई, ए का भाई कौन थे? आपके मामा थे, मतलब मम्मी का भाई क्या हो गया? आपका मामा हो गया, जिसका नाम क्या है? एक्स। क्या हो रहा है ये? ओके, इसको पूरा एरेज करके हम लोग फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, ए और बी हस्बैंड वाइफ होते हैं, मैरिड कपल हैं, जिसमें से बी आपके पापा है, मान लेते हैं बी इज योर फादर। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्स जो है इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब आपकी मम्मी का भाई, मतलब आपके मामा जी। ठीक है, मामा जी का भाई हो गया वाई, तो मतलब एक्स और वाई दोनों किसका भाई हो गया? मामा का। मामा का भाई आपके पापा के कौन लगेंगे? ब्रदर इन लॉ, साला, साले साहब हो गए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18. In each of the following questions, find out how many pairs of these letters are in the given word. Each of them has many given letters between them and between them in English alphabet. Okay, ठीक है। Brighter, देखो क्वेश्चन को हिंदी में मैं बताता हूँ आपको। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में वर्णों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होती है। ठीक हो गया। ब्राइटर, ब्राइटर में कितने हैं? BRIGHTER, ब्राइटर, ब्राइटर में कितने हैं? 3। हैकल, हैकल में कितने आ रहे हैं? बताओ, 1 2 3 4 कितने आंसर होंगे? 1 2 3 4 में क्या होगा? 4। पिकल, PICKLE, PICKLE कितने हैं? 2 3 4 5 कितने होंगे पिकल में? 5। अरे हमारे सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस चेक कर लिए होंगे। मैंने कोशिश किया है कि इसमें आपको हिंट दूं क्वेश्चन में कैसे क्या सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो सी सेट वाले, जो एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे जो कि जल्दी ही आपके चैनल कैच करो पर अपलोड हो जाएगा, सो डैट कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है वो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए मैंने हिंट के लिए आप लोगों को बता दिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विद कैच करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।